संपूर्ण भारतवर्ष में 30 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक मना रहा है। इसका थीम है से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। इसी तारतम्य में पूरे भारतवर्ष में अनेक कार्यक्रमों का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हमारे सभी आरसीज के द्वारा। और इग्नू आरसी भोपाल में जो आरसी कैश है कमेटी, उसके साथ आरएसडी कैश के साथ मिलकर ज्वाइंटली यह वेबिनार आज ऑर्गेनाइज किया है, जिसका टॉपिक है वुमेन्स डिग्निटी, वैल्यू सिस्टम एंड विजिलेंस। तो सबसे पहले मैं अपने रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर बिनी टॉम्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे वेलकम एड्रेस दें। Thank you, Smriti. Namaskar, good evening. Respected our Pro Vice Chancellor Ma'am, Professor Sumitra Kukreti ji, हमारे keynote speaker, Advocate Sadhna Pathak ji, members from all the regional centers, our students, evaluators, academic counselors, also others from various groups who have been shared the invitation, members of RSD Cash at IGNOU headquarters, members of iCash and ACash at IGNOU headquarters. I join my colleagues, Dr. Anshuman, Dr. Smriti, Dr. Kumud Verma, and Dr. Subhash, and Dr. Mursenia ji in welcoming all of you to this program. जैसा कि स्मृति ने इंट्रोडक्शन में बताया कि बाकी आरसीज के साथ हम भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं, और हमने ये सोचा कि जब थीम है से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन, सो नो टू करप्शन, we believe it also means saying no to discrimination against women, saying no to prejudices against women. और हम जब कमिट टू द नेशन की बात करते हैं तो देश को आगे बढ़ाने में इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ जेंडर इक्वालिटी ऑल्सो, बिकॉज इट इज ऑल द सिटीजन्स इंक्लूडिंग विमेन दैट टुगेदर वर्क टुवर्ड्स द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। ये बेसिक आइडिया से हमने ये वेबिनार प्लान किया ऑन द टॉपिक विमेन्स डिग्निटी, वैल्यू सिस्टम एंड विजिलेंस। और इसके लिए मैंने तो बस इसका बैकग्राउंड दिया है क्योंकि वी हैव साधना जी विद अस who is an expert in the field. She is a lawyer and an expert in the field of women and children and their legal rights. अभी कुछ ही समय में मेरे कलीग चंद्र प्रकाश मुर्सिनिया जी उनका विस्तृत परिचय देंगे। इसके अलावा हमारे साथ मैं साधना मैम को वेलकम करती हूँ इस प्रोग्राम में, एंड आई थैंक यू मैम फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड कमिंग टू दिस प्रोग्राम, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत व्यस्त हैं, उसके बावजूद आपने हमें समय दिया, हमारा निमंत्रण स्वीकारा और आज हम पधारे। सो थैंक्स अ लॉट मैम फॉर दैट एंड वी वेलकम यू अगेन। माय थैंक्स आर ड्यू टू आवर Pro Vice Chancellor, who is a member of our family, Professor Sumitra Kukreti ji, who is also a very busy person, but she has spared time and she has given consent to attend this program. Thank you so much, ma'am. We heartily welcome you to this program on behalf of IGNOU Regional Center, Bhopal. I must add that Kukreti ma'am is also a specialist in gender concerns, feminist concerns. She's a person of English literature. I'll give her introduction in a while, but definitely she's also the right person for this program. So we have excellent people who would help in deliberations on this program. मैम का भी मैं फिर से स्वागत करती हूँ। साथ ही स्वागत करती हूँ हमारे क्षेत्रीय केंद्रों से और हमारे इग्नू हेडक्वार्टर से जो भी ऑफिशियल्स, फैकल्टी, हमारे कलीग्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। Also, I extend a hearty welcome to our coordinators, our counselors, and our evaluators who are with us on this program. Also, all our
well-wishers and stakeholders who are with us on this program. I heartily welcome each one. Last but not the least, I welcome our dear students who are our assets. I welcome all of you to this program. This program is important because it is also a deliberation about changing our attitudes, changing our mindset, and also changing and bringing about a different culture in the society. So once again, extending a hearty welcome to each one, and inviting you all to listen to this webinar on the topic Women's Dignity, Value System and Vigilance. Over to Smriti. मैडम, सबसे पहले हम आदरणीय प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती जी को इनवाइट करेंगे अपने ब्लेसिंग्स देने के लिए. थैंक यू स्मृति, बट मैम को प्लेटफॉर्म हैंडओवर करने से पहले, क्योंकि उनका इंट्रोडक्शन काफ़ी विस्तृत है, और इग्नू में तो वो हमारे परिवार की है, हम सब उन्हें जानते हैं, लेकिन जो इग्नू के बाहर जिन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है, for them I would give a brief introduction of Kukreti ma'am. Professor Sumitra Kukreti is an academic with teaching and career spanning more than 3 decades. She holds an MA, a D.Litt in English, and then her PhD. Her research interests include 20th century literature, Indian English literature, comparative literature, and, as I said earlier, gender and feminist concerns. Before joining IGNOU as Pro-Vice Chancellor, Professor Sumitra Kukreti has taught at many institutions. She was the founder head of the Department of English in MJP, Rohilkhand University, Bareilly, where she worked at various positions for over 25 years. She has also served as the coordinator of the Center of Excellence for Women's Studies in her previous institution, and also as a member of NAAC Steering Committee and the Internal Quality Assessment Cell. Making meaningful contribution in academics, Professor Kukreti has authored 3 books and over 50 research papers in journals of national and international repute. She has supervised 16 doctoral students. 4 doctoral research works are still under progress. She has 40 research papers in national and international seminars, has conducted workshops, and has been awarded a project by the UGC, which has been successfully completed. That is a very brief introduction of Professor Sumitra. And with these brief words, मैं मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारी सभा को संबोधित करें और अपना ब्लेसिंग जरूर दें. Good afternoon to one and all. Thank you. You said it was brief, but I regard it as very elaborate introduction. It was not needed at all. First of all, I would welcome the keynote speaker, though, of course, since she's a guest for all of us, so I would like to welcome the keynote speaker, Dr. Sadhana Pathak. And then I also congratulate Dr. Ranjita Panda, RSD Cash, Bini Toms, Regional Director, RC Bhopal, for organizing this webinar on such a pertinent topic. And then all of us, as we know, that Article 21 of the Constitution guarantees the right to live with dignity to all the citizens of the country, and women represent almost half of the population. So recently we have also taken a pledge, say no to corruption, during this Vigilance Week, as it was the guidelines by the center. And then we have also followed it. We have taken pledge, say no to corruption and commit to the nation. As all of us know fully well, that corruption is not only in monetary terms, but it has multiple angles. And accordingly, Central Vigilance Committee has formulated revised definition of vigilance. And particularly when we talk about women, this corruption takes a different turn, because usually people expect favors
and different kinds from women, which is also very severe mode of corruption. And then, though all of us know that we live in a country where women are regarded with high esteem, you know, since the I do not know when we started reading about it, but since very early childhood we have been listening that India is a nation where women occupy very high place in family as well as in society. Yatra naristu pujante ramante tatra devta. And then, not only this, we have also witnessed that I believe India is, it is one of the rarest country in which we have most of the deities who are women. We worship goddess Lakshmi, goddess Durga, goddess Shakti, goddess Saraswati for providing, for bestowing various kinds of boon to us. So basically, it has been a country where women are worshipped naturally. But as every system, it gets corrupted, it gets changed, system gets distorted after a certain period. Gradually, we have also learned that various kinds of drawbacks, those drawbacks appeared in Indian society, and we have witnessed them in the forms of practice of sati, practice of dowry, practice of child marriages. And we are also very happy to know that our government has our constitution has various laws against all these things, all these practices which harm the dignity of women, because there was Immoral Traffic Act, the Dowry Prohibition Act, which was passed in 1961, and again it was revised in 80s. We have Protection of Women from Domestic Violence Act, Sexual Harassment of Women at Workplace, and various others laws. I won't like to speak on it in detail because definitely we have an expert who is right from that field, who is going to discuss all these things in detail. But one thing definitely I would like to contribute, that treating women with equality and dignity begins at home. I think all of us agree with this fact that if we are being treated equally in our parental home, when a woman gets married, she treats her son and daughter equally. And if she has faced discrimination at various levels, at various fronts, naturally she won't find it very natural to treat her sons and daughters equally. Though, of course, society is changing rapidly. And today, whenever we read newspapers, we feel very happy about various achievements of women at every stage, whether this is Olympics or this is civil service or participation of women in law, participation of women in medicine, participation of women in engineering. It is increasing everywhere. Presence of women is ubiquitous in social life, and it is also increasing in politics, though still in politics, a representation of women is far from adequate. Definitely, I would admit that. But the number of women is increasing gradually, and we can be optimistic that, in the long run, if we'll follow this practice, if we'll remain aware about our rights, if we will remain vigilant about our rights, then definitely the situation will change. And very soon, we would be able to say it proudly that India is a nation where women and men both march side by side. There will be no kind of discrimination between women and men. For this, the second thing is that as women, we need to realize our rights.
we need to realize that how much we can contribute in bringing this equality. But remember, the equality that we are talking about should never be equated with equality that women acquire in Western countries. Because if that is equality, then I would say that this would hamper our family structure. In India, we need all the women to be equal. We need equality, definitely. But remember, we have to maintain the family structure too. Because stretching everything too far is not very useful for any society, because it will not be able to contribute positively for the growth of the nation. And as every day we see various kinds of cases in the form of rising cases of divorce, various other things. I we as women need to think something about that too, right? So once again, I would congratulate Regional Center Bhopal and RST Cash for organizing this webinar on such an pertinent issue. And then I hope it will be a success, and all the women participants, all the people, not only women, but all the participants will take something from this webinar as a message, and they would happily implement it in their life. So with these words, I just say goodbye. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जो आपके जो आशीर्वचन इतने सरल शब्दों में आपने इतनी गहराई से ये जो हमारा आज का टॉपिक है इसके बारे में जो डिटेल्स दिए हैं, हमें और अधिक सोचने पर मजबूर किया है और हमारा इंटरेस्ट इस वेबिनार में और अधिक बढ़ गया है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अब समय आ गया है कि हम अपना जो आज का मुख्य वक्ता है उनसे उनका वक्तव्य सुने। लेकिन उसके पूर्व मैं अपने रीजनल सेंटर भोपाल से श्री सीपी मुर्सेरिया जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे हमारे मुख्य वक्ता मैडम एडवोकेट साधना पाठक जी का परिचय दें। हाँ, नमस्कार। श्रद्धेय साधना पाठक एक वरिष्ठ और प्रखर अधिवक्ता के रूप में जानी पहचानी जाती है। मैडम साधना पाठक विभिन्न 5 विषयों में मास्टर्स हैं, जिसमें हिस्ट्री, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और लॉ शामिल है। आप एक अच्छी और सफल सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आपने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए बहुत और उत्कृष्ट काम किए हैं। आपकी प्राथमिकता और उपलब्धि में महिलाएं और बच्चे विशेष रहे हैं। सूचना का अधिकार कानून लागू करने वाले आंदोलन में आपकी उपयोगिता और सहभागिता चर्चा में रही है। पारिवारिक विवादों और मामलों को मीडिएशन के माध्यम से सुलझाने में आपका सक्सेस रेट 100% रहा है। इस कारण आप जनप्रिय भी हैं और लोकप्रिय भी हैं। आपके बारे में यह भी चलन है कि आप जितनी अच्छी प्रोफेशनल हैं उतनी ही अच्छी इंसान भी हैं। आपके प्रतिद्वंदी और प्रतिस्पर्धी बताते हैं कि आप सोने का दिल और लोहे के हाथ रखती हैं। इसके साथ मैं आमंत्रित करता हूं श्रद्धेय साधना पाठक। धन्यवाद आदरणीय मरसानिया जी। जो शब्द आपने मेरे लिए कहे मैं उसके लिए आभारी हूँ। पता नहीं मैं इतना डिजर्व करती हूँ या नहीं, लेकिन आपके शब्दों के लिए जरूर मैं हृदय से आभारी हूँ। आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर और इतने विद्वान जनों की सभा में और इतने अनुभवी लोगों के बीच में मुझे बोलने का अवसर मिला है, मैं इसके लिए सभी आयोजकों की आभारी हूँ और सभी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। विषय इतना गंभीर और इतना बड़ा है
कि इसे कुछ मिनटों में या घंटों में समेटा नहीं जा सकता। दरअसल ये पूरा जीवन का दर्शन ही से जुड़ा हुआ है, पूरे जीवन का विषय है ये। हम जिस युग में जी रहे हैं, जब भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बनता जा रहा है, ये एक संक्रमण का दौर है। ऐसा लगता है कि एक ऐसा युग है जिसमें द्वंद है, भ्रम है। द्वंद और भ्रम इस प्रकार का कि जिस मूल्य आधारित सिस्टम से हमारा समाज आ रहा था, जहां पर हम कहें कि सब माया है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, और ये सारा सारा जो वैभव है, सारी संपत्ति है, या जो सारी जितना प्रलोभन की वस्तुएं हैं, इनको हिकारत और इनको तुच्छ दृष्टि से देखा गया, और मोक्ष और मुक्ति को और त्याग और शुचिता को ऊंचा स्थान दिया गया। उस यात्रा को करते करते हम समाज में अब कहाँ आ गए हैं कि एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि अब जीवन का उद्देश्य ही सुविधा है। वस्तुतः कुछ 1% नगण्य गिन लीजिए, बाकी जीवन का उद्देश्य ही सुविधा है। जीवन में सारे सुख होने चाहिए, येन केन प्रकारेण, साम दाम दंड भेद, नीति अनीति, कैसे भी, लेकिन सुख सारे होने चाहिए, और यही उद्देश्य है। और जब ये उद्देश्य है तो भ्रष्टाचार जो है वो अब शिष्टाचार बनने की के राह पर चल पड़ा है। मतलब एक कालनेमी है, और वो अब उस रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है कि वो समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है। हम आजादी के बाद से देख रहे हैं जो व्हाइट कॉलर जो अपराध हैं, जो आर्थिक अपराध हैं, जो संगठित आर्थिक अपराध हैं, उन सब को लेकर के किस प्रकार से समाज में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं हुई, हम 2 विश्व युद्ध झेल करके, और पूरी संसार का जिस तरह बंटवारा हुआ, और उसके बाद एक अंधी दौड़ शुरू हो गई, विकास, अंधाधुंध विकास जिसको मैं कहती हूँ, कि जब अंधाधुंध विकास शुरू हो गया तो लोगों के मूल्य जो है, जीवन के मूल्य है, वो कहीं तिरोहित हो गए, वो कहीं हाशिए पे चले गए, और एक प्रतिस्पर्धा, ऐसी प्रतिस्पर्धा ने जन्म ले लिया कि जिसके लिए लोग में एक झिझक, हिचक या शर्म हम कह लें कि वो बहुत बहुत कम होने लगी। इसके लिए हम देखें कि भौतिकवाद का एक जो दौर चला, जो हम देखें कि पश्चिम से हमारे देश में आया, हमारे देश या जहां पर बौद्ध संस्कृति है जिन देशों में, या एशियाई देश आप देखें, तो जो भौतिकवाद या बाजारवाद जब हावी हो गया या वो प्रभावी हो गया, तो उस बाजारवाद ने पूरे समाज को, पूरे अर्थव्यवस्थाओं को एक मार्केट बना दिया। बहुत छोटा सा उदाहरण है, कल करवा चौथ थी, या आने वाले कोई भी त्योहार होते हैं, आप देखिए कि सभी जगह बाजार जो है वो अब प्रभावी है, और उसमें आप ये देखिए कि मेरी कमीज जो है वो आपकी कमीज से सफेद होना चाहिए। अब उसके लिए जो भी व्यवस्था हो, फिर वो मैटर नहीं करता है। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि आपने मुंशी प्रेमचंद का, पता नहीं, एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास, बड़ा कालजयी, बड़ा मतलब जिसको कहा जाए माइलस्टोन, गबन एक उपन्यास उन्होंने लिखा था, और उसमें इत्तेफाक से ऐसा कि महिला को एक गहने से प्रेम होता है, और वो पति को उस गहना खरीदने के लिए धीरे धीरे वो इस तरह प्रेरित करती है कि पति एक गबन करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो पूरी कहानी कुल मिलाकर के, चेखव की भी एक कहानी इसी तरह की, कि महिलाओं को जो है वो कई बार इस तरह भी प्रस्तुत किया जाता है कि, या उनका कि वो जो है सहयोग करती हैं, किसी तरह से दबाव बनाती हैं। लेकिन इसके सर्वथा भिन्न मैं आपको जाकर बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने सामाजिक जीवन में कार्य करते हुए महिलाओं और पंचायती राज के मुद्दे पर जो महिलाओं का आरक्षण हुआ था, 33%, 90s की बात कर रही हूँ सर मैं, उस आरक्षण के बाद जब बड़ी संख्या में महिला पंच सरपंच, लगभग 5 लाख जन प्रतिनिधि चुने गए मध्य प्रदेश में, मुझे एक स्टडी करने का मौका मिला था, और मैंने पाया कि 1365, मोर देन 1300 महिलाएं सिर्फ इसलिए जेल में थीं कि उन्होंने सिर्फ अंगूठा लगाया था। वो पढ़ भी नहीं सकती थी कि वो किस चीज पर हस्ताक्षर कर रही हैं।
और ये माननीय मतलब उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने उसको संज्ञान लिया, और जब उनका पूरा मैटर फिर सरकार को सुलझाने के लिए कहा, तो ये भी एक विषय है कि महिलाएं शिकार भी है, महिलाओं पर भ्रष्टाचार का बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है, महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है, और महिलाएं कहीं ना कहीं उसके लिए उपयोग भी की जाती है। कहीं भी भ्रष्टाचार के लिए आप देखिए कि महिलाओं को एक टूल भी बना लिया जाता है। अब अगर देखें कि मैं पंचायती राज की वापस इसलिए बात करूंगी क्योंकि मैंने उसको बहुत गहराई से समझा है, और समाज में वो बहुत एक छोटी इकाई हम देखेंगे कि इस तरह से थी। तो जो अकाउंटेबिलिटी है, या जिसको हम कहेंगे कि जवाबदेही, तो समाज में जवाबदेही नीचे के स्तर से, जैसे अभी मैडम ने बहुत ही सुंदर बात कही कि परिवार के स्तर से ही इसको देखा जाना चाहिए, तो समाज में जवाबदेही जो है, अकाउंटेबिलिटी, वो बिल्कुल नीचे ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के स्तर से ही हम देखें, तो अगर वहीं से उसमें भ्रष्टाचार शुरू हो रहा है, और वहीं से उसमें महिलाएं जिस तरह विक्टिम बनाई जा रही हैं या उनको पीड़ित बनाया जा रहा है, आज देखें कि कितने आज भी बहुत, हालांकि मैं ये मानती हूं, मुझे स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि बहुत कम हुआ है, लेकिन एक समय आज भी वह है कि पति सरपंच नाम का भी एक पद है, और पति सरपंच बैंक में भी जाकर लिखता है रजिया बाई या अमुक बाई कि वो पति की पत्नी की सील लगता है। तो ये जब तक इस समाज में स्वीकार हो गया है, समाज में चलन बन गया है, तो ये एक बहुत ही जो है अशुभ लक्षण है, या बहुत ही खतरनाक, जिसको मैं कहूंगी कि एक ये लक्षण है, ये ट्रेंड है, ये समाप्त होना चाहिए। धीरे धीरे हम आप देखते हैं कि हर क्षेत्र में, आज की डेट में हर क्षेत्र में आप चले जाइए, हम देखें कि राजनीति में हम बहुत ही रिसेंट इश्यू हम एक देख रहे हैं। आज ही उसमें एक माननीय सांसद महोदया को संसद की आचरण समिति के सामने बयान देने के लिए उपस्थित होना पड़ा। तो ये भी इंगित करता है कि एक उस स्तर पर भी कि हमारे देश की सर्वोच्च संस्था में भी इस भ्रष्टाचार ने किस तरह से अपने पैर पसारे हैं। तो ये देखिएगा कि ये पूरा एक कैंसर, मैं इसको जरूर समझती हूँ, और मैं बिल्कुल, अगर मैं कह रही हूँ तो जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि ये पूरे, एक तो ये तेजी से बढ़ता है, दूसरा ये अन्य लोगों को प्रेरित करता है। जब एक अधिकारी का मकान, आरआई या पटवारी हैं, या जो भी अधिकारी हैं, पुलिस वाले, उनका मकान अगर 3 मंजिल है, उनके पास अगर 20 प्लॉट है और 4 गाड़ियां हैं, और तो उनके पास शान और शौकत है, और उनसे बड़े अधिकारी यदि बहुत बुरी स्थिति में है, तो ये सब चीजें क्या है कि फिर ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझ लिया जाने लगा है। आज वो दौर है, बहुत बहुत देखिए, मैं इसको अगर कह रही हूँ कि ईमानदारी जो है वो इस तरह से भी जुमले लोगों से आप सुन लीजिए, बेईमानों से, कि सब ठीक है, आपको मौका नहीं मिला। तो ये एक समाज, हमारा कौन सा समाज है जिसमें कि हम वो मूल्य व्यवस्था को, वो जीवन मूल्यों को हम कहाँ छोड़ आए हैं कि हमारे अंदर ईमानदार बने रहने का, ईमानदार बनकर खड़े रहने का साहस ही हमारे अंदर खत्म हो रहा है। हम देखिए कि बड़े हमारे यहाँ राजा और महाराजाओं के उदाहरण हैं। मैं मूल्य सिस्टम पर आपके सामने 2-3 चीजें रखना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ तो जैसे स्वप्न में भी राजा हरिश्चंद्र ने अगर राज्य दान कर दिया तो वो वास्तविकता में करके निकल गए। हमारे यहाँ मतलब अर्जुन जैसे व्यक्ति जो घोषणा करते हैं कि न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम या सुख दुखम समय कृत्वा। तो हमारे यहाँ बौद्ध दर्शन में भी आप देखिए किस मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। समत्वम योग उच्यते, कि सम रहना, मतलब अगर हमने उस मूल्य सिस्टम को छोड़ा है, अगर हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था में अपने जीवन मूल्यों को, हमने परिवार में अपने जीवन मूल्यों को छोड़ा है, तब जाकर के हमें बाहर भी इस भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है। जैसा मैं फिर आदरणीय मैडम को कोट करूंगी कि अगर घर के अंदर परिवार के सदस्य ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और जैसे कि 40,000 वेतन है और पति 1 लाख रुपए लाया, तो पत्नी उससे पूछने के बजाय कि ये कहाँ से आया, खुश होती है और बच्चे एंजॉय करते हैं, तो वही बच्चे उसको जैसे मैंने कहा सुविधा भोगी बन करके, और उसको आगे अपने लिए भी उसी तरह की व्यवस्थाएं ढूंढते हैं, और आगे जाकर के वो भिन्न भिन्न करप्शन के शिकार हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक मैं कहूंगी कि संक्रमण का युग है। हम संविधान के अनुच्छेद 21 की तरफ देखें, और वो ये कहता है कि जीवन जीने का ही अधिकार नहीं है मनुष्यों को, कि भारत के नागरिक या उनको सिर्फ उनको गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। उस जीवन में
डिग्निटी होना चाहिए, उस जीवन में मान सम्मान, आत्मसम्मान और इतनी गरिमा होनी चाहिए। और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा आघात करता है एक मनुष्य की डिग्निटी पर, एक मनुष्य की गरिमा पर, और खास करके स्त्री गरिमा के साथ भ्रष्टाचार बहुत बड़ा आघात करता है। और हम देख रहे हैं, हम अपनी फिल्में उठा के देख लें, हम अपनी फिल्में उठाकर देख लें कि हमारी पहली फिल्मों में 2 बीघा जमीन आप देखें, मदर इंडिया देखें, और बहुत सारी, मैं आपको क्या जो है इसकी लंबी एक लिस्ट है जिसमें मूल्यों को के आगे सुविधाओं को तुच्छ समझा गया। लेकिन आज हम जो है वो सारी शूटिंग हमारी फिल्मों की विदेशों में होती है, और हमारी करोड़ों की, 100 करोड़ से कम की फिल्म तो लानत है। तो इस तरह से आप देखिए कि फिल्मों के अंदर भी और फिल्मों के निर्माण में भी और उनके मैसेजेस में भी करप्शन की कहीं ना कहीं प्रशंसा, कहीं ना कहीं हमें उसकी साथ सिंपैथी समाज में, क्योंकि जो समाज का में हो रहा है साहित्य में भी वही परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि दर्पण है ये चीजें। तो हम ये देख रहे हैं कि एक बहुत मजबूत विल पावर की, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता है सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाने के लिए, सार्वजनिक जीवन को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए। और यदि हम ये कहें कि ये सतर्कता जो है, ये जो सतर्कता सप्ताह मनाया जा रहा है, इसको हम सिर्फ एक दिन में या एक सप्ताह में न रखते हुए हम अपने जीवन में पूरे समय के लिए सतर्क रहें, पूरे समय के लिए हम इसको आचरण में उतारें, तो ये हमारे लिए बहुत ही ये उचित होगा या बहुत जरूरी होगा। तो कई आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि कई फोरम ऐसे हैं, सॉरी जी, सॉरी मैडम, कट गया है, इधर आइए ना, यूट्यूब में जाना पड़ता ना, वहीं से रिज्वाइन कर लीजिए। हाँ, वापस लिंक पे क्लिक करके रिज्वाइन आ जाएगा। क्षमा कर, मैं सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहे हैं जी। तो मैं एक हमारे सीनियर थे जज, माननीय उच्च न्यायालय के जज साहब थे, वो एक बैंक में वो गए और उन्होंने बातचीत की, तो कुछ अच्छे तरीके से जवाब नहीं मिला उनको, तो बैंक अधिकारी के द्वारा अच्छे तरीके से जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने वो इशारा करके बताया कि देखिए साहब, ये लिखा हुआ है कि सद्भावना सप्ताह। तो उनने कहा कि आप नीचे पढ़िए, ये अप्रोच नहीं रहे, अब कहा है तो गलतों में, और पूरे समय की रेड, कई लोकायुक्त की रेड, ये सब बाद में ही क्यों आता है? न्यायालय में इतनी जब केसेस आते हैं और हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े रैकेट और संगठित रूप से अपराध पाए जाते हैं, तो हमें लगता है कि पहले से क्या कर रहे हैं लोग, पहले से क्यों नहीं उसको, आपके पास कोई वो सिस्टम क्यों नहीं है कि उसको पहले ही रोका जा सके? तो ये कि रादर देन हम उसको एक सप्ताह मनाएं, बल्कि मेरी यही सुझाव थे कि हम हमेशा ही उसमें हम सतर्कता रखें। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई पोर्टल हैं आज की डेट में, तो इतने व्यवस्था है कि आप एक गुमनाम पत्र लिख दीजिए, लोकायुक्त को लिख दीजिए, ईडी को लिख दीजिए, एक सीएम का भी पोर्टल है, सीएम का पर्सनल विजिलेंस डिपार्टमेंट है, उसमें भी आप लिख दीजिए। हम जिस फील्ड में हैं, हमारे यहाँ माननीय जो न्यायाधीश होते हैं, जो जजेस होते हैं, उन जजेस के लिए आप देखिए कि सफाई का मौका नहीं होता है, उनको स्पष्टीकरण का मौका नहीं दिया जाता है, संदेह सीजर्स वाइफ वाला सिद्धांत लागू होता है कि सब संदेह से परे होना चाहिए, तो उन पर अगर संदेह भी हो गया तो भी उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो इतनी सख्ती, इसीलिए जो है वो आपको इतनी ही सख्ती हर फील्ड में ही रखनी होगी, और हर फील्ड में ही इतनी ही सतर्कता भी रखनी होगी कि पहले ही उसको पहचाना जा सके, और सख्त से शून्य, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। जब हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे तभी हम, मुझे लगता है कि इस भ्रष्टाचार के कैंसर से स्वयं को मुक्त कर पाएंगे। और सबसे ज्यादा, जो सबसे अधिक मुझे लगता है, वो शिक्षा व्यवस्था में फिर से हमें उस नैतिक शिक्षा को, उस मूल्य आधारित शिक्षा को हमें बढ़ावा देना होगा, और सार्वजनिक जीवन में हमें, हमारे पास महात्मा गांधी जैसा कैरेक्टर था इस देश में, सबसे बड़ी भूमिका उनकी सादगी ने, उनकी सरलता ने पूरे समाज को ये संदेश एक समय दिया था कि जीवन के मूल्य जो हैं वो सुविधाओं से कहीं अधिक
आगे हैं, ऊंचे हैं और सम्मानीय हैं, तो हम जीवन मूल्यों पर हम जाएं और आगे बढ़ें। दूसरा चीज ये कि अमानत में खयानत, एक ये वाला भय भी होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी है या कर्मचारी है या किसी भी विभाग में है या किसी भी जिम्मेदार पद पर है जहाँ पर कि उसकी जिम्मेदारी है, तो उसके अंदर एक चेतना ऐसी होना चाहिए कि मैं छोटा सा एक बिल्कुल बताती हूँ कि चाणक्य विष्णुगुप्त जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे, उनसे मिलने के लिए कोई सज्जन गए तो उनने तुरंत एक दीपक को बुझा दिया और दूसरा दीपक जला दिया। तो उन्होंने कहा ये आपने क्यों किया? तो उन्होंने कहा ये शासकीय तेल से दीपक जल रहा था और मैं अब आपसे निजी बात कर रहा हूँ। तो इतनी शुचिता, इतना मूल्य आधारित आचरण इस देश को फिर से अब चाहिए है। और ये देखिए कि इसके लिए सबको सामूहिक प्रयास करने होंगे, हमारे बच्चों में भी हमें वही संस्कार देने होंगे और हमें समाज में भी वैसे ही उदाहरण, सादगी के उदाहरण हमें प्रस्तुत करने होंगे। बहुत सुंदर है सादगी, बहुत मतलब देखिए एक चीज और, हम जिस फील्ड में से मैं आती हूँ, मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मैंने 20 साल के कैरियर में ऐसे ऐसे जो मतलब कहा जाए डॉन या बड़े मठाधीश या बड़े गुंडे, जो बड़े माफिया, जो जिनको ये लगता था कि साहब कोई हम पर हाथ नहीं डाल पाएगा हम पर। मैंने प्यारे मियाँ के केस में जो है पीड़ितों की तरफ से पैरवी की थी, 1000 करोड़ की संपत्ति उनकी अन्य 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 जगहों पर। तब मैंने उनके आत्मविश्वास को कई बार देख करके मुझे बड़ा अफसोस होता था। बोले अरे सब तो हमारे साथ हैं, आप बताइए कैसे, मतलब कोई हमें हाथ कैसे डालेगा। लेकिन मैं आपको एक सत्य बताऊं कि सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा यदि वाजयेयुः, अंततः ट्रुथ प्रिवेल। और हर व्यक्ति जो है वो किसी न किसी दिन पहाड़ के नीचे आता है, हर व्यक्ति पकड़ा जाता है। वो कितना ही भाग ले, वो कितना ही जो है वो बचने की कोशिश कर ले, एक ना एक दिन, मैंने एक और केस के ट्रायल, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैं किसी का मान हानि नहीं करना चाहती हूँ, पर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक मामला था जिसमें करोड़ों की जो है नोट गिनने की मशीनें जो है वो कम पड़ गई थी और उनका इतना दम्भ था कि हम पर हाथ कैसे कोई डाल पाएगा, कोई कैसे, अरे हम तो इतने साल से चले आ रहे, 20 साल से 40 साल से चल रहा था हमारा। तो ये चीज कि हम ये देखें कि ये चीज कि कभी भी सत्य सामने आ ही जाता है, कम से कम इसलिए हम तो कर्म सिद्धांतवादी हैं और उससे उसी आधार पर चलते हैं कि अपना काम अच्छे से करें, अपना काम शुचिता से करें और अपना एक अच्छा उदाहरण समाज में प्रस्तुत करें। इसके अलावा यदि कोई आपका कोई प्रश्न हो, कोई आपकी कोई जिज्ञासा हो, तो मैं मेरी योग्यता और अनुभव के आधार पर आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में आपने इतने पेचीदा विषय को समझाने की कोशिश की है और हम लोग सभी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे साथीगण हैं और जो हमारे दूसरे आरसी से जुड़े हुए साथीगण हैं, अगर आपको कोई प्रश्न करना है तो जरूर हम यहाँ पे एक चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं को धन्यवाद देना चाहती हूँ इतने अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। आपने बहुत ही कम समय में बहुत ही सटल तरीके से आपने क्रिस्प तरीके से आपने अपना प्रेजेंटेशन किया और जो सबसे मुख्य मुद्दे थे उनको आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया मैम। मुझे जो इसको टेक अवे मैसेज जो मैं समझती हूँ मेरे लिए, आपने जो कहा कि चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे एक महिला की बात हो या सोसाइटी की बात हो, जीरो टॉलरेंस की जो आपने बात की वो बहुत अब समय आ गया है कि हमें वो उसको अपनाना होगा। और इसके अलावा हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही नैतिकता और मूल्यों के बारे में शिक्षा, एथिक्स की शिक्षा, ये कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में ही इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। तो ये दो बहुत बड़ी बातें आपने कही। इसके अलावा जो आने वाली पीढ़ी है उसको वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। जैसे आपने कहा किसी परिवार में कोई पिता अगर पैसा लेकर आते हैं जो उनके इनकम से ज़्यादा है और उनकी पत्नी भी उसको स्वीकारे, बच्चे भी उसका आनंद उठाए, तो कहीं ना कहीं हम अपना एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हैं अपने परिवार के सामने, अपने बच्चों के सामने, दूसरे हमारी आने वाली यंग जनरेशन के सामने। तो उसकी भी ज़रूरत है लीडिंग बाय एग्जाम्पल, चाहे वो परिवार हो, चाहे हमारा ऑफिस हो,
चाहे हमारा समाज हो। ये 3 चीजें मैं अपने लिए टेक अवे मैसेज मानती हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम, ये बहुत ही अच्छा आपका डेलिब्रेशन है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी को लाभ हुआ होगा और सबके मनों में जरूर न कोई सवाल भी उठ रहा होगा। तो मैं अपने पार्टिसिपेंट से आग्रह करूंगी कि जरूर मैम से इंटरेक्ट करें। Yes, रोशन जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? Yes, please. Yes, please. Thank you so much, Sadhna madam. It was a very interesting and very informative. आपने जो कुछ भी शेयर करा हमसे, बट जो मेजर मुद्दा है वो मेजर मुद्दा रह ही जाता है कि इस करप्शन को पहली बार तो दूर कैसे कर सकते हैं, विच इज यक्ष प्रश्न, अगर आप चाहें तो ऐसा ले सकते हैं। दूसरा, हम लोगों को गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करते हैं उनकी तरफ से तो हम दिख जाता है कि ये मतलब पैसा लिए हैं, या व्हाट अबाउट द प्राइवेट सेक्टर जहां पर किकबैक्स चलते हैं। ठीक है, दूसरा मैं आपसे पूछना चाहती थी कि हमारी शिक्षा के अंदर हमने फिलॉसफी और एथिक्स को रिमूव कर दिया है ऑलमोस्ट, जो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सेटबैक है। जिस कंट्री के अंदर एथिक्स और फिलॉसफी रिमूव हो जाए ह्यूमैनिटीज से, मेरे ख्याल से वहां पर ये सेटबैक तो आना ही था, क्योंकि बच्चों को इस बात का कैसे पता चलेगा जहां पर हम फिलॉसफी नहीं पढ़ाते हैं, हमारी संस्कृति नहीं पढ़ाते हैं, जहां पर हमारा एथिक्स नहीं है कुछ भी। मतलब एक एथिक्स का पेपर चलता था, आई स्टिल रिमेम्बर माय सिलेबस जब मैं फिलोसफी पढ़ती थी, कि फिलोसफी एंड एथिक्स का एक पेपर हमारा लिटरेचर के साथ हमको पढ़ाया जाता था। तो ये सेटबैक्स तो हो ही रहे हैं, पर इनका किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं? देखिए कि मटेरियलिज्म तो हर जगह आ चुका है। इट इज नॉट दैट कि वेस्ट से आया है ये मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म वाज ऑलरेडी इन एवरी सोसाइटी, नॉट ओनली वेस्ट बट आल्सो इन ईस्ट। बट मटेरियलिज्म इतना इफेक्ट करेगा, उसका क्या मेन सोल्यूशन है? हाउ आर वी सपोज टू वर्क एट इट? जैसे कि आपने कहा कि पाटीदार जो है या पटवारी जो है उसके पास बहुत सारा पैसा है और जो उससे बड़ा अफसर है वो मुफलिसी में रह रहा है, तो नेचुरली उसकी मुफलिसी प्रॉब्लम बन जाती है। तो हाउ डू यू थिंक दैट वी कैन पुट ऑन टू इट? हाउ कैन वी रिमूव दैट और इवन वर्क टू? थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है और काफी सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि एक बार एक ताम्र पत्र मिला, उसमें लिखा था समाज में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, सब जगह बड़ी अनैतिकता फैली हुई है, बड़ा दुख होता है देख करके, और ये सब लोग घूस लेते हैं, बड़ा तकलीफ होती है। इस तरह का वो ताम्र पत्र का कंटेंट था। आप बिलीव करेंगे वो तो 4000 साल पुराना ताम्रपत्र चीन से मिला था। तो ये इतनी शाश्वत समस्या है कि एक तो ये कि समाज जो है वो उसके साथ ही कई सालों से जी रहा है, और कई आप हिस्ट्री का भी देखेंगे कि उदाहरण इस तरह के। अब ये एक ऐसा ये है विषय है कि इसको एकदम समाप्त किया जाना तो मुझे लगता है कि संभव बहुत जल्दी नहीं होगा, क्योंकि कई सालों से जो जड़ों में है, जो जिसको कहा जाए, अभी तो हम तो उस विश्व वृक्ष के फल खा रहे हैं, बल्कि वो वृक्ष तो बहुत बहुत पुराना, उसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं। और उसको खत्म करने के लिए एक ही उपाय है, जो आपने भी कहा, नैतिक शिक्षा है, जो मूल्य आधारित जीवन है। उस जीवन को अपनाने के लिए कुछ लोगों को आगे आना होगा, और कुछ लोग जो अपने से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि मूल्य आधारित शिक्षा से जो जीवन आगे मिलता है, उसी से ही हमारे लिए आगे मतलब एक अच्छा रास्ता, एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज जो है वो हमें क्या दे सकता है। देखिए, आज लाभ और हानि का युग है। आप सीधा सीधा लोगों को लाभ दिखता है। वो माता पिता जैसे कोई पिता भ्रष्टाचार नहीं करता और गरीब है, उसके बच्चे भी उनकी इज्जत नहीं करते। अरे आप तो देखिए वैसे ही कुछ नहीं, देखिए पड़ोसी उनको देखिए। तो वो बच्चों, हम किस तरह की पीढ़ी के साथ जी रहे हैं, उनके अंदर मूल्य की स्थापना करना, ये बहुत मुझे लगता है जरूरी है। और नई पीढ़ी जो है वो उसमें जो भौतिकवाद जो बहुत ज्यादा आ गया है, वो आगे जाके हिंसा की तरफ जाएगा। भ्रष्टाचार हिंसा का जुड़वा भाई है, भ्रष्टाचार से ही आगे हिंसा होगी। Thank you, madam. Thank you so much. Thank you for the question, ma'am. Roshan ma'am.
और इसके अलावा और कोई अगर हमारे साथीगण कुछ डिस्कशन पे रखना चाहते हैं फोरम पे, तो हम लोग उसे कुछ 4-5 प्रश्न लेना चाहते हैं। इस बीच में मैं एक मैसेज में कुछ लोगों ने, कई लोगों ने अपना जो फीडबैक है या मैसेज बॉक्स में दिया हुआ है, जिसमें अधिकांशतः वेबिनार को बहुत यूजफुल बताते हुए थैंक यू लिखा है। और एक सलमान करीम, यस, इस बीच में हमारा एक रेज हैंड है, राणा प्रताप सिंह जी। प्लीज आप अपना क्वेरी रखिए, आप अपना वीडियो ऑन भी कर सकते हैं प्लीज। इस बीच में मैं एक छोटा सा विषय देखिए उठा देती हूँ। जो आपने निजी जीवन में भ्रष्टाचार की बात कही, निजी जीवन में भ्रष्टाचार की बात कही, हम एक लेविश शादियां देख रहे हैं आजकल, हम समाज में बहुत महंगी शादियां देख रहे हैं, और वो एक बड़ा दबाव बनाया जा रहा है कि अन्य लोगों पर कि बहुत महंगी शादी आप करें। तो ये एक आपने कहा ना कि निजी लोग जो निजी जीवन में बहुत सारा खाना बनाते हैं, उस खाने को व्यर्थ भी वो खाना बहुत सारा हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो यूज नहीं हो पाती हैं, जो चीजों को रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। तो ये सब चीजें क्या है कि कई समाज में देख रही हूँ आगे आ रहे हैं, कई समाज के समाज मृत्यु भोज पर लोग रोक लगा रहे हैं, लोग महंगी शादियों पर रोक लगा रहे हैं, लोग भोजन की डिशेस जो है वो कम कर रहे हैं कि हम 5 या 7 डिशेस ही परसेंगे। तो ये धीरे धीरे हमारे समाज में अभी आ रहा है, लेकिन इसको और बेस्ट प्रैक्टिस जो भी है, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को और अधिक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। आप ये देखिए कि किस तरह से कम कपड़ों में, किस तरह से कम सुविधाओं में हमारे पूर्वजों ने कितने सुंदर काम किए हैं, कितना अच्छा उन्होंने जीवन जिया है, और हम आज इतने सारे भोग विलास में रहकर की आत्महत्याओं की दर देखिए आज के समाज की, कितना सारा सुसाइड रेट बढ़ गया है। तो इसका मतलब यह है कि सुविधाएं या भ्रष्टाचार से जो चीजें प्राप्त की गई वस्तुएं, वो जो है वो आपकी सुविधा तो बढ़ा सकती है, मानसिक शांति नहीं दे सकती, आपको सुकून नहीं दे सकती, आपको वो आपको आत्मबल नहीं दे सकती, वो आपको कायर बुजदिल बना देंगी, वो आपको डरपोक और हिंसक बना देंगी। तो ये चीज समझनी पड़ेगी और ये चीज समझानी भी पड़ेगी कि आप जिस भ्रष्टाचार से सुविधाओं को ला रहे हैं, वो कितना आपको अशांत कर रहे हैं, आपके मन को अशांत कर रहे हैं। जैसे आज ही मैंने कि आप कितना ही कमा लीजिए, मानसिक शांति नहीं है तो राज्य के राज्य आपके लिए बेकार है। तो ये हमारे यहाँ का अध्यात्म सिस्टम ये सब चीजों पर बल देता है। जी मैम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने भी ये गिवन अस लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट, बहुत सारी बातें आपने बताई जो हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि कहाँ कहाँ पे बदलाव की जरूरत है, स्ट्रक्चर्स में भी और हमारे सोच में भी। थैंक यू मैम। मैं यहाँ से श्वेता कुछ पूछना चाहती हूँ, श्वेता सिंह कुछ पूछना चाह रही है। सबको सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार, और मैं आरसी भोपाल और डॉक्टर बिनी टॉम्स मैडम की पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ। इस विजिलेंस वीक पे इतना अच्छा सेशन आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया गूगल मीट के थ्रू, जिसके माध्यम से हम भी जुड़ सके यहाँ दिल्ली में रहते हुए भी। और मैं इस वक्त इग्नू के हेडक्वार्टर मैदानगढ़ी स्थित रीजनल सर्विसेज डिवीजन से बोल रही हूँ। और मैडम की जो बातें सुनकर बहुत ही बढ़िया लगा, और हमारा अभी मैडम ने बात ये सच कहा कि इतनी बड़ी टॉपिक को कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में निपटाना बहुत ही मुश्किल बात है। फिर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही, भ्रष्टाचार के बहुत सारे पहलुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला, ग्राम पंचायत के लेवल से, गवर्नमेंट ऑफिसेस के लेवल से, निजी लाइफ, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर भी उन्होंने ये बात प्रकाश डाला। बहुत अच्छा लगा मैम। बट मेरा एक छोटा सा सवाल है, जो अभी हाल ही में जो भारत सरकार का विसल ब्लोअर वाला जो कानून ऐन बना है, उसमें हमारी महिला मतलब उसमें क्या योगदान दे सकती हैं, और मतलब उसको और इस कानून के विषय में महिलाओं को और जागरूक करने के लिए हम क्या क्या उपाय अपना सकते हैं। थैंक यू मैडम। देखिए, ये जो विसिल ब्लोअर वाला जो एक्ट आया है, इसमें थ्रेट जो मिलता है महिलाओं को
और जो कई विसिल ब्लोअर का हम देखते हैं कि उनके साथ क्या अंजाम होता है उनके साथ। हमारे यहाँ जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें गवाहों के प्रोटेक्शन का भी एक लाया जा रहा है कि अगर कोई गवाह सत्य बोलना चाहता है, गवाही देना चाहता है, तो उसकी हत्या कर दी जाती है या उसको गायब करवा दिया जाता है। उसी तरह से विसिल ब्लोअर के लिए भी है। तो ये एक रिस्क तो है, अगर इसमें महिलाएं अपना योगदान देना चाहती हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा अपने अंदर साहसी होना चाहिए, उनके अंदर उनका सपोर्ट सिस्टम पहले डेवलप करना चाहिए, और वो किसी भी एनजीओ के साथ या पुलिस के जो विभाग हैं उनके साथ मिलकर के अगर काम करें तो ही वो अपनी भूमिका अच्छे से निभा सकती हैं। नहीं तो अकेले एक हम ऐसे समाज में हैं कि आज के लोग हिंसा करने के पहले सोचते नहीं हैं और वो कुछ भी हिंसा की शिकार हो सकती हैं। लेकिन इंडिविजुअल के बजाय हम देख रहे हैं जो विसिल ब्लोअर भी हैं वो भी ग्रुप बनाकर अगर काम करते हैं, उनके साथ कोई संस्थाएं जुड़ी होती हैं या उन नॉलेज में होता है कि वो इस तरह से काम कर रहे हैं, तो वो तो उनके लिए ठीक है। नहीं तो कोई जैसे कई अकेली महिलाएं हैं, मैंने यहाँ पर आरटीआई एक्टिविस्ट लोगों के साथ काम किया है, सूचना के अधिकार के मुद्दे पर काम किया है, तो उस वक्त तो ये स्थिति थी कि जो कानून बनाने के लिए जो संस्थाएं आती थी उनको भी थ्रेट मिलता था और उनके साथ जान पर उनके हमले हुए, कई आरटीआई एक्टिविस्टों की जान भी गई। तो जो विसिल ब्लोअर महिलाएं हैं उनको पहले अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए, अपना डिटेल नोट करवाना चाहिए और तभी वो उसमें आए। पर हाँ, महिलाएं इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बल्कि वो अच्छे से निभा सकती हैं। क्योंकि अभी भी समाज में आप ये देखिए कि ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि जो महिलाएं हैं वो उस तबके में भ्रष्टाचार बहुत कम है वो अभी उतना उसमें अछूती हैं क्योंकि वो परिवार चलाती हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके अंदर एक जो है वो नैतिक रूप से जो एक आध्यात्मिक शक्ति होती है। तो और वो मुझे लगता है कि दूरदर्शी ज्यादा होती हैं, उन्हें पता होता है कि बहुत सारे जो है जो सुखों को वो या सुविधाओं को वो ला रही हैं उसके रिपरकेशन जो है वो उनके और उनके परिवार के लिए अच्छे नहीं होंगे। तो ये एक जिम्मेदारी का एहसास जो उनके अंदर होता है बचपन से ही होता है, मैं जानती हूँ। तो इसलिए अभी वो इस फील्ड में बहुत कम इन्वॉल्व है करप्शन में, लेकिन वो विसिल ब्लोअर अच्छी हो सकती हैं। कई लोग हैं और कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं मैडम जी। मैम आपने बहुत ही अच्छा जो ये सब्जेक्ट था आपने अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया। आप ड्यूरिंग आपके लेक्चर आपने बताया कि जो सरपंच पति एक आपने एक वर्ड यूज किया था, और दूसरी बात आपने बताया कि आपने जो स्टडी किया था उसमें ये पता चला है कि मैक्सिमम जो महिला सरपंच है वो विक्टिम है क्योंकि उनको पता नहीं उसमें किसमें उन्होंने किस कागज पर साइन किए। तो मैम इस क्षेत्र में हम क्या उसका सल्यूशन निकाल पाएंगे ताकि जो हमारा रूरल एरिया में जो माँ बहनें जो सारे सरपंच के सीट पर बैठे हैं उनको कैसे जागरूकता क्रिएट किया जाए ताकि वो उनका राइट और उनका ड्यूटी समझे, ताकि सिर्फ पति कहने से उस पर साइन ना करें। क्योंकि आप इस फील्ड में आपको ज़्यादा आइडिया होगा, उस फील्ड में हम कैसे जागरूकता लाएं ताकि वो एक मेन स्ट्रीम में आ पाए, उनके ड्यूटी क्या है, उनका राइट्स क्या है वो जान पाए। थैंक यू सो मच। देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब एक समाज में एक ऐसा परिवर्तन हुआ था कि जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में और खास करके उसमें आरक्षण था, बहुत बड़ी पैमाने पर आरक्षण था, तो ग्रामीण क्षेत्र में हर वर्ग की, बहुत ही इनफैक्ट निचले वर्ग की भी जो महिलाएं थी वो जब सरपंच बन गई तो उनको छुआछूत के आधार पर, जाति के आधार पर या महिला होने के नाते उनके इतना डिस्क्रिमिनेशन का लेवल था कि उसी दौर में मैंने उसी समय सूचना का अधिकार का भी आंदोलन चल रहा था, ग्राम सभा ग्राम पंचायतों का भी चल रहा था, बहुत सारी संस्थाओं के साथ हम काम कर रहे थे, गाँव गाँव जाकर देख रहे थे। कई हत्याएं हुई हैं कि पत्नी ने कहा है कि मैं जबरदस्ती सरपंच की कुर्सी पर बैठूंगी, मैं पंचायत भवन में जाऊंगी, तो कहेंगे पंचायत तो एक ऐसी जगह जहाँ महिलाएं जा ही नहीं सकती, आज तक कभी महिलाएं पंचायत में पैर ही नहीं रख सकती, या तुम तो फिर अमुक जाति की हो। तो उनकी उस कारण से कई मर्डर केस भी हुए, कई एट्रोसिटीज हुई और उस सब पर हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और कई संशोधन भी आए। अभी वो स्थितियां उतनी भयावह नहीं है, धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में कि महिलाएं भी पदाधिकारी हो सकती हैं और महिलाएं भी जो है वो सम्मानित हो सकती हैं, पंचायत भवन में आ सकती हैं। लेकिन दुर्भाग्य है और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज भी अगर गाँव में आप चले जाइए और कोई मीटिंग हो रही होगी पंचायत की
सरपंच जो है, महिला सरपंच, वो तो बेचारी कहीं कोने में बैठी होगी या घर होगी। ऑल मेन शो आदमी ही अपना चला रहे होंगे, और वो खड़े होके, कई बार तो पति बोलते हैं कि सरपंच साहब भाई ये सरपंच साहब हैं। जब उनसे पूछा जाए कि आप सरपंच, बोले नहीं मेरी पत्नी सरपंच है, मैं सरपंच पति हूँ। तो एक तरह आ गई सरपंच पति। तो अभी तो मध्य प्रदेश में मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने कानून बना दिया है कि सरपंच पति शब्द जो है वो उन्होंने कहा ये गैर कानूनी है, कोई ऐसा करता पाया जाएगा तो उसको दंडित किया जाएगा। और वो जो 1365 महिलाएं थी जिनके सचिव और उपाध्यक्षों ने सवर्ण और पढ़े लिखे होने के नाते उनसे अंगूठे सरकार दस्तखत करवा के उन्हें जेल भेजा था, उस पर तो फिर एक पूरा एक कमेटी थी और उसको डिस्पोजल हुआ। और ये जब देखा गया कि दे आर इनोसेंट, और तब से फिर एक पारदर्शी सिस्टम मतलब लाया गया है। लेकिन ये बहुत बड़ा रोग है, मैं कह रही हूँ कैंसर है ये, और इसको बहुत समय लगेगा। इसमें हम सबको अलर्ट होना पड़ेगा, तब जाकर के हम समाज के हर वर्ग को, महिलाओं को बराबर का अधिकार दिलवा पाएंगे। अभी अनुच्छेद 14 जो बराबरी का अधिकार है, बहुत अभी दूर है हमारे समाज में, और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सभी प्रश्नों का डिटेल में आप अच्छे से जवाब दे रहे हैं और बहुत ध्यान से हम लोग सुन रहे हैं। इसी बीच में सलमान करीम ने लिखा है कि वी गॉट ब्रॉडर इनसाइट ऑन द सिचुएशन ऑफ women are facing today. Thank you so much to the honorable dignitaries. It is required to discuss, bring change about these things. It was indeed very useful and meaningful session today. Thank you for honorable dignitaries for explaining so well today. तो ये एक फीडबैक मैंने आपके लिए पढ़ा। इस बीच में मेरे मन में भी एक प्रश्न आया था, मगर शायद अभी और भी नहीं, और किसी का रेज हैंड नहीं दिख रहा है। तो इस बीच हालांकि आपने कुछ हद तक उसका उत्तर बीच में दे भी दिया, क्योंकि हम लोग जब जेलों में, हम लोगों का भी के स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग सेंट्रल जेल में विजिट करते हैं टाइम टू टाइम। तो सेंट्रल जेल ग्वालियर जो है, मैंने कई बार विजिट किया है, तो वहाँ पे 3000 कैदियों की कैपेसिटी है। लगभग 2500 के आसपास कैदी थे, 2 से 2500, जिसमें टोटल विमेन जो कैदी थी उनकी संख्या सिर्फ 100 से भी अंदर थी, 100 से भी अंदर। तो ये प्रश्न हमेशा दिमाग में आता है कि इसके पीछे क्या किसी तरह की रिसर्च आपकी फील्ड में हुई है, या इसके क्या रीजंस है कि उनके, या फिर कानून हमारा इस तरह का है कि वहां पे महिला कैदियों को कम रखा जाता है, या क्या स्थिति है वो आज तक हमें समझ नहीं है। तो क्या इसका संबंध आज के हमारे टॉपिक से है, ये पूछना चाहती हूँ। बहुत आज के टॉपिक से बहुत गहरा संबंध है, और ये अपने आप में ये एक प्रमाण है कि महिलाओं ने ही समाज को जो है वो अपने कंधों पर उठा रखा है, वे ही आज की एटलस हैं। और ये आप देखिए कि अगर वो आंकड़ा है, और कहीं भी आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया में देख लीजिए कि 4 से 50% महिलाएं समाज का हिस्सा है, लेकिन अपराध में उनकी भूमिका 2 या 3% और उससे अधिक नहीं है। और भ्रष्टाचार में भी उनके वो जो आंकड़े हैं वो 2 या 3% से ही ज्यादा नहीं होते हैं। तो ये आप ये देखिए कि हमें अभी इस वर्ग से वो उम्मीद है कि ये वर्ग चमत्कार कर सकता है, ये महिलाएं चमत्कार कर सकती हैं। ये महिलाएं चाहें तो करप्शन भी नहीं होगा, और ये महिलाएं चाहें, क्योंकि इन्हें ही अपने जो समाज के सदस्यों को समझाना है कि वे सफर तो कर रही हैं, तो वो क्यों ये करप्शन के का सपोर्ट वो करेंगे। तो ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, और ये वास्तव में प्रतिशत यही है, महिलाएं जो हैं वो भ्रष्टाचार संबंधित अपराध में 2 से 3% ही हिस्सा देती हैं। बाकी इस कुछ कई मैंने आपसे कहा लगातार कई विजिट में मैंने एक चीज और महसूस की थी कि जो पुरुष कैदी हैं वो हैप्पी फील होते थे, वो उनमें उतना डिप्रेसिव नहीं थे वो जितना कि महिलाएं डिप्रेसिव थी, क्योंकि वो कैद थी वहां। तो मैंने अभी जी मैंने अभी भोपाल जेल में हम लोग काम कर रहे हैं। ये एक सामाजिक कार्य है हमारा भोपाल जेल के साथ में। उसमें 119 महिला कैदियों के साथ छोटे बच्चे हैं, शिशु हैं, 1-2 साल 6 महीने और 2-3 साल, बहुत छोटे शिशु हैं वो। तो उन महिलाओं के लिए उनको किस तरह से बाहर निकाला जाए और उनसे जमानतें वगैरह ये कराई जाए। तो महिलाएं जो है वो
स्वभाव से ही समाज को जोड़ने वाला उनका एक मनोवृत्ति होती है, और वो उस तरह से नहीं रह सकती जिस तरह पुरुष कंफर्टेबल रह लेते हैं, वो नहीं रह पाती हैं। तो ये भी आपकी बात से सहमत हूं मैं कि वो जरूर डिप्रेशन में है, और छोटे बच्चे उनके साथ वो भी सफर करते हैं। ये थैंक यू वेरी मच मैम। और नीलोफर जी, डॉक्टर नीलोफर ARD हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि अपना प्रश्न रखना चाहती है। प्लीज आप पूछिए नीलोफर जी। आप वीडियो में प्लीज ऑन कर दीजिए ताकि हम आपको देख पाए। बहुत शुक्रिया इतने इम्पोर्टेंट इशू पर सबका जहन लाने के लिए। मैं समझती हूँ कि इंटीग्रिटी ऑफ वीमेंस का जो टॉपिक है ये अपने आप में इंतहाई गहरा और बहुत समझकर इस पर बोलने की ज़रूरत है। मैम, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अभी ये पिछले 20 साल, आपसे 20 साल पहले जब हम निगाह डालते हैं तो जो क्राइम का रेट है वीमेंस या जो छोटी लड़कियों के या ये जो इस तरह से रेप के केसेस आ रहे हैं या दूसरे तरह के एक्सप्लॉयटेशंस हैं वो जो हो रहे हैं, पहले इतना नहीं था। उसके बाद जो भी हादसा हुए उसके बाद तमाम तरह के कानून भी बनाए गए और उन्हें इम्प्लीमेंट भी किया गया। लेकिन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा के देख लीजिए, कोई पेज खाली नहीं होगा जहां पर ऐसे हादसा से भरे हुए मामला नहीं देखेंगे आप। मैं ये सोचती हूँ कि कहाँ पर हमसे कुछ चूक हो रही है, हम कहाँ पर कोई चीज़ मिस कर रहे हैं कि इस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक विमेन होने के नाते, एक मदर होने के नाते, एक आधी दुनिया हम कहते हैं औरतों को, तो हम कोई कमज़ोर जगह पर नहीं हैं और हम पूरी आधी दुनिया को कवर करते हैं। तो आखिर वो क्या वजह है जो हमारी ग्रिप में नहीं आ रही है? कुछ एक चीज़ें जो मैं खुद समझती हूँ, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि लड़कियों का वक्त की पाबंदी नहीं होना, अपने बड़ों की बात नहीं मानना या अपनी लिमिटेशंस को समझना। लिमिटेशंस का मतलब मेरा ये नहीं होता है कि वो कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद भी हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, उसे क्रॉस कर देना, अपने बड़ों के जो संस्कार हैं उनकी अहमियत को नहीं समझना, वेस्टर्न कल्चर को अपने ऊपर हावी करना, बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं कि इसकी वजह हो सकती है। लेकिन हमारे पूरे इंडिया के समाज में चाहे शहर का माहौल हो या कि गांव का हो, ये क्राइम आप देखेंगे कि तेजी से बढ़ रहा है और हर दिन अफसोसनाक खबरें हमारे सामने हैं। तो एक माँ होने के नाते, एक बेटी होने के नाते या एक बीवी होने के नाते हम कौन से अपना रोल कहाँ पर रख सकते हैं, जहाँ पर हम कानून की बात नहीं कर रहे हैं, पुलिस की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने लेवल पर, अपने परिवार के लेवल पर, अपने सोसाइटी के लेवल पर, अपने इंस्टीट्यूशन के लेवल पर हम क्या स्ट्रॉन्ग स्टेप लें जिससे इस पर हम संतोषजनक, मेरे ख्याल में हम अपने स्टेप माने, इसको किस तरह से शुरू कर सकते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल में अगर हम थोड़ी सी भी शुरुआत करें, हर एक औरत, हर एक माँ, हर एक गार्जियन अगर इस स्टेप को ले, तो मेरे ख्याल में जो कानून बनाया जाता है वो जस्ट एक पेपर वर्क होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आधी दुनिया तो कवर हो जाएगी। और ये खबरें चूंकि इतनी दर्दनाक होती हैं कि अब तो लोगों को इस तरह आदत पड़ चुकी है कि कोई उसे पढ़ता तक नहीं है। जी जी, ये इंतहाई खतरनाक बात होती चली जा रही है मैम। इस पर हम किस तरह से अपना क्या रोल इसमें लगा सकते हैं? जी जी, देखिए मैडम, एक तो आपने कहा कि बहुत ज्यादा इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। मेरा जो है, मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस में हूँ, पिछले 20 वर्षों से हूँ, और मैं चीजों को देखने का एक मनोवैज्ञानिक नजरिया भी रखती हूँ। जो है दृष्टि मेरी अलग होती है थोड़ी सी। मेरा एक ऑब्जर्वेशन आप देखिए, आप शायद सहमत होंगे, रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है, केसों की रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है। और पहले रिपोर्ट ही नहीं होते थे केस, पहले उनकी तवज्जो ही उतनी नहीं दी जाती थी उन केसेस की। अब अवेयरनेस ज्यादा है, अब जो है वो छोड़ना नहीं है, माफ नहीं करना है। पहले मर्यादा, लिहाज, परिवार अंदर के अंदर दबा, परिवार के द्वारा परिवार की महिलाओं पर किए जाने वाले अत्याचारों की तो सामने आने ही नहीं दिया जाता था। आज की डेट में अगर पिता रेप कर रहा है तो बच्ची जाकर के रिपोर्ट करना चाहती, सहना नहीं चाहती। एक तो ये दूसरा टकराव हो रहा है मैडम, हितों में टकराव हो रहा है। जो हित हैं वो टकरा रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रही हैं महिलाएं और पुरुष उसको सह नहीं पा रहे हैं। ये तो ये समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, ये समाज का परिवर्तन इस बात का द्योतक है कि आगे बढ़ रहे हैं और टकराव हो रहा है। इसमें महिलाओं को साहस की आवश्यकता होगी और महिलाओं को आपस में सहारे की, सहयोग की आवश्यकता होगी। और अब एक हमारे समाज को समझना होगा कि महिलाओं को अब बहुत ज्यादा दिन तक उतना दबाया नहीं जा सकता है। वो ह्यूमन बीइंग है, वो मध्य युग चला गया जब उनके बाजार लगा करते थे, अब तो बहुत भिन्न बात हो गई है।
उस मानसिकता से पुरुषों को बाहर आना पड़ेगा कि महिलाएं तो आगे बढ़ेंगी, स्वाभाविक रूप से वे अब तैयार हो जाएं कि वे उन्हें सम्मान और स्पेस दे सकें। और ये जो अपराध आपने कहा, इनका तो मुझे ये तो बहुत दुखद है समाज में, लेकिन हाँ, ये होने का कारण यही है कि ये जो हितों का टकराव है, उस हितों के टकराव के कारण ही ये समाज में इतना हिंसा ज्यादा सामने आ रही है। मैडम, ये चीज मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू इस इंटरेक्शन के लिए। थैंक यू। नीलोफर को भी बहुत दिनों बाद देख के बहुत अच्छा लगा। अभी 3-4 साल हो गए जब हम दिल्ली में पोस्टेड थे तो साथ में काम करते थे, और इसका भी हमेशा ये रिलेटेड टॉपिक है, इसका भी पीएचडी का, तो ये इंटरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैम का भी इतना एक्सपर्टीज है इस सब्जेक्ट में, खास करके महिलाएं और बच्चों को लेकर, तो ये बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन रहा, क्योंकि इन बातों को मुझे लग रहा है इस चर्चा का अंत नहीं है, लेकिन एक सेंसिटाइजेशन सोसाइटी में लाना, और कहीं ना कहीं हमें मतलब वो जीरो टॉलरेंस की जो बात कही, जो मैं फिर दोहरा रही हूँ, तो ये चीजें हमारे दिमाग में रखना और आसपास के लोगों को समझाना, सेंसिटाइज करना, अवेयरनेस बढ़ाना, मेरे ख्याल से यही एक सोल्यूशन दिखाई देता है। लॉस तो अपनी जगह है, लेकिन ये चर्चाएं, ये डेलिब्रेशंस होती रहनी चाहिए। ये मैम भी मुझसे एग्री करेंगी, साधना मैम भी, ये डेलिब्रेशंस, ये चर्चाएं होती रहना जरूरी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तब One last question, madam, with your permission. I'm sorry. Only one last question, madam. मैं सोचती हूँ आपने एक थोड़ा सा पहलू नहीं डाला है, वो था मीडिया का रोल। मीडिया जिस तरह से एक इमेज को उभार रहा है और एक इमेज को दबा रहा है, उसके अंदर आप क्या सोचती हैं कि कहीं ना कहीं मीडिया बदलना चाहिए? मैडम, आपका प्रश्न बहुत स्पष्ट है। देखते थे। हेलो जी, आप हाँ जी, मीडिया की भूमिका को लेकर के आप देखते थे, जैसे कि सुबह हुई या कुछ ऐसी पिक्चरें, अर्थ हुआ या ऐसी कुछ पिक्चरें। आपका माइक अनम्यूट करिए, म्यूट है आपका माइक। मैडम, आप सुन पा रही हैं? माइक नहीं खुला, माइक अनम्यूट कर लीजिए रोशन मैडम। Sorry, am I audible, sir, now? You are audible. Please repeat your question. हाँ जी, जिस तरह की मूवीज आजकल बन रही हैं, आप मीडिया का क्या रोल बनेंगे? अभी आपने करवा चौथ के बारे में कहा था, तो यशराज की पिक्चरों से ही सीख के मैडम इतना मटेरियलिज्म आ गया है। आप देखिए, हाँ, आप मीडिया के बारे में प्लीज थोड़ा बताइए कि एक कॉन्क्रीट पैरेलल चलता था मेरे जमाने में जब हम लोग पढ़ते थे, एक कॉन्क्रीट मीडिया, एक पैरेलल मीडिया चलता था जो महिलाओं की समस्या पर बात करता था। जैसे मुझे अच्छी तरह पिक्चर याद है सुबह, जो जेल के ऊपर बनी थी। तो व्हाट अबाउट मीडिया मैम? थैंक यू। नहीं, मैं 1 मिनट में मीडिया की भूमिका पर तो जरूर ही बोलना चाहूंगी कि पहले अखबार छप के बिकते थे, अब बिक के और फिर छपते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैंने कह दी। और भ्रष्टाचार के मामलों में भी संपादकों के पास फोन पहले आ जाता है और रेड बाद में पड़ती है। तो मीडिया की भूमिका जो है वो, अब मीडिया जो है, संपादक नाम की संस्था समाप्त हो गई है, और मीडिया भी खुद अपने आप में एक मल्टीनेशनल कंपनी है, खुद भी बाजार का हिस्सा है, या तो वो बेचवाल है या वो खरीदार है। तो अब ऐसी स्थिति में वैसे निष्पक्ष मीडिया की जो है वो यहाँ पर अब जरूरत है वो है नहीं। और अब तो ऐसा है 24/7 मीडिया को मसाला चाहिए है और लड़ाना है और भिड़ाना है ये, लेकिन खबरें जो है वैसी और वैसा मैसेज देने वाला मीडिया अब नहीं है। और देखिए, फिल्म निर्माता तो कहते हैं कि सब वो हम तो वही दिखाते हैं जो समाज में घटित होता है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है, वो नैरेटिव सेट करते हैं। नहीं तो आप ये देखिए कि इस तरह से न शादियां, कई फिल्में आप जानते हैं जिसमें शादियों का इतना लेविश बताया जाएगा कि वो दबाव पैदा करती है। सही है कि मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। मैडम, ये हर एक जो डिस्कशन हो रहा है, इस सब में हर में एक दो सेमिनार हो सकते हैं, तो इसलिए ये तो नेवर एंडिंग है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतने संयम से सारे आंसर देने के लिए। और ये विषय ऐसा है कि हम इस पे काफी लंबी चर्चाएं और भी ऑर्गेनाइज करेंगे आगे, लेकिन अभी हमारे पास लिमिटेड समय है
और इसलिए मैं अपनी रीजनल डायरेक्टर मैम और जो और हमारे प्रबुद्धगण सीनियर लोग हैं उनकी परमिशन से ये चाहती हूँ कि इस पे हमारे साथ डॉक्टर रंजिता पांडा जी जुड़ी हुई हैं जो कि RSD कैश की अध्यक्षा हैं, और उनसे चाहूंगी कि ये आज के वेबिनार पर अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दें। थैंक यू डॉक्टर मूर्ति एंड आप सभी को नमस्कार। मैं साधना जी को सुनते सुनते इतना भावुक हो गई थी, मैं भूल गई थी कि हमारी मीटिंग की अंतिम चर्चा में हम आ गए हैं और मुझे भी कुछ उनको क्वेश्चन करनी थी। उससे पहले जस्ट 2 शब्द क्लोजिंग रिमार्क्स करने के बाद मैम से जस्ट मैं 30 मिनट्स टाइम लूंगी। 30 मिनट्स नहीं 30 सेकेंड, सॉरी मैम आप पहले ही कर सकते हैं। क्वेश्चन था क्योंकि हाँ, जो मेरी एक्सपीरियंस है, डॉक्टर बिनी जो रीजनल डायरेक्टर RC भोपाल मैडम भी RC केस के चेयरपर्सन थे, RSD केस के चेयरपर्सन थे और बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन में वो अथॉरिटी पोजीशन में थी। बट हम लोग का वही सवाल है, हर चीज हो रहा है साधना जी, पॉलिसी डिसीजन सब कुछ, बट इम्प्लीमेंटेशन के लेवल में सब वीक है। और ये मैं आपको दोहराऊंगी कि और उसके लिए मेल सोसाइटी, आई डोंट वांट टू से कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, बट जो मेल मेंबर है कोई ऑफिस में, फैमिली में और सोसाइटी में, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन इनडायरेक्टली डोमिनेट होता है और उसमें इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट में वो क्लोज हो जाता है, डिसीजन नहीं होता है और अधूरा रह जाता है। इसके लिए आपका क्या राय है? मैडम, इसमें बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि बड़ी बड़ी छापे होते हैं, जांच होती है और मुलजिम तू, मुद्दई तू, अदालत तेरी, फैसला तेरा, इस पैटर्न पर ये सब चीजें फाइनली जाकर के सेटल हो जाती हैं। एक दिन खबर छपती है इतना ये सब हुआ। तो आप ये देखिए कि जिस आत्मबल की जरूरत है और जिस सामाजिक और सामूहिक आत्मबल की जरूरत है उसका अभी अभाव है। मैं आदरणीय अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ी थी और यहाँ पर उनके साथ काफी काम किया था। मैंने उनके अंदर वो जज्बा देखा था, मैंने महात्मा गांधी को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा कि अन्ना हजारे के अंदर तो इस तरह के जो व्यक्तित्व हैं, अब वो अगर सामने आए और वो मैसेज दें तो तभी हम इस समाज में कुछ आगे कर सकते हैं। और जो आपने कहा कि समाज में जो पुरुषों का है, मैं भी ऐसे आक्षेप व्यक्तिगत रूप से नहीं लगाना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरह से जो हमारे सामने प्रश्न आए कि अब ये देखिए कि एक पुरुष अगर कर रहा है करप्शन तो वो ये कहता है कि परिवार के लिए कर रहा हूं, मेरा बच्चा विदेश पढ़ सके, मेरी पत्नी हीरे का हार पहन सके। अब ये तय परिवार को करना है कि उनको ये चाहिए या नहीं चाहिए। मैडम, ये बहुत ही निजी और बड़ा पारिवारिक विषय है जो फैल करके बहुत बड़ा सामाजिक रूप ले चुका है। ये आप ये देखिए कि इस पर हमें बड़े चिंतन की जरूरत है, गहन चिंतन की जरूरत है। और वास्तव में ऐसे विषय सेमिनार के आधे घंटे में जो है वो एड्रेस करना बड़ा संभव नहीं होता है, लेकिन ये चर्चा का शुरुआत अच्छा है, ये मैं जरूर कहूंगी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। एंड सभी को नमस्कार again, and I would like to thank to the team of RC Bhopal and the regional director Dr. Vinny Toms for organizing such a wonderful webinar on women dignity, value and vigilance. I would like to thank at the outset, I would like to thank Professor Kukriti मैम ने जो बताई है women के बारे में, the position of women, the dignity, the right and the significance in a family, what is her structure, what is her function, what is her role, she emphasized। और बहुत अच्छे से मैडम ने समझा है कि हमारा जो प्राइमरी रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समाज में, नैतिक स्तर में, सामाजिक स्तर में जो भी हम लोग को आगे बढ़ना है, पहले वुमेन को लेकर जाना है। ऐसे ही साधना जी ने तो बहुत सारे चीज के लिए बताई है, एक एक मैं बताऊं तो अभी और आधा घंटा हो जाएगा। छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर चाणक्य के रूल, कंसेप्ट, जो डिग्निटी क्या होता है, भ्रष्टाचार क्या होता है, सबसे बहुत ही सरल एवं प्रांजल भाषा में जो बताई, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार से मुक्त रहना है, जीरो टॉलरेंस को एक्सेप्ट करना है। ये जो चीज है हम सब महिलाओं के लिए बहुत ही चिंता की विषय है कि हम कैसे इसको आजमाएं, कैसे इसको हम एक्सेप्ट करें, कैसे समाज में इंप्लीमेंट करें।
और ये इंडिविजुअल लेवल में होना चाहिए। समाज में तो हम लोग ऐसे चर्चा करें एक ही मीटिंग में, 2 मीटिंग में, बट इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, सब अथॉरिटी, सब पॉलिसी मेकर और इंडिविजुअल से टॉप लेवल तक इसी को हम आगे लेकर जाएं तो देश की, नेशन के लिए, ये हमारे जो डिग्निटी, वैल्यू, जो एथिक्स है महिलाओं के, नारी के, समाज के लिए, वो जरूर एक दिन हम लोगों को विजय देकर, हम लोगों को आगे लेकर समाज को भी डेवलप करेगा। और ये जो साधना जी ने बताए हैं, आज बहुत सारे चीज बताए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन के रिप्लाई दिए हैं, बहुत सारे चीज, छोटे छोटे चीज, बिगिनिंग, एक फैमिली से कैसे बिगिनिंग होता है। मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न और उसमें सवाल भी है और उत्तर भी है। समाज में नारी का जो स्थान है पहले फैमिली से शुरू होती है। फैमिली में जो नारी एक स्त्री के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में है, और वहां सम्मान से कोई पापा और कोई हस्बैंड या भाई की तरफ से ये शुरू होना चाहिए, स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल। क्योंकि जब हम बचपन में क्या होता है, एक बेटी अपने भाई के पास, मुझे बाहर जाना है, नहीं आपको बाहर नहीं जाना है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि सोसाइटी के आगे अभी भी वही बंधन है, वो बंधन से मुक्त होना है हम लोगों को। और मुक्त होने के लिए हमारे ऑफिस, हमारे समाज, हमारा जो नैतिकता है उसी को चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिविटी डेवलप करना पड़ेगा, और इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो मैं बोला, एक मेन और वीमेन, जैसे मैडम ने बताया, कुकृति मैडम ने, एक महिला और एक पुरुष के में तफात है, बट वो तफात को हम पॉजिटिविटी के साथ, हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम आगे बढ़े, तो मुझे लगती है हमारा सोसाइटी में जो ग्रीन सस्टेनेबिलिटी है वो और ग्रीन हो जाएगा और सस्टेनेबल हो जाएगा। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए मैं, जैसे रीजनल सेंटर भोपाल में जैसे ये शुरुआत है, ऐसे ही शुरुआत से हम लोग बहुत सारे चर्चा करें और इसी विषय को आगे छोटे छोटे पंक्ति में डिवाइड करके, छोटे छोटे वैल्यू, एथिक्स एंड वुमेन डिग्निटी करके हम एक एक चर्चा करें, तो मुझे लगती है कि ये जो हमारा सेमिनार के जो मुख्य उद्देश्य है ये फ्रूटफुल होगा और हम सक्सेस हमको मिलेगा। और इसी के सिवा और एक छोटे से चीज मैं आप सबके सामने जाहिर करती हूँ। पोस एक्ट, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन था हमारे, हरासमेंट, ये भी रिलेटेड है विजिलेंस करप्शन के साथ, क्योंकि एक मेंटल पॉल्यूशन होता है, मेंटल करप्शन होता है, वो भी वुमेन के साथ रिलेटेड है। कोई एक महिला ऑफिस में काम कर रही है, उसका मानसिक स्थिति भी मुक्ति होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, काम करने के एक फीलिंग्स होना चाहिए। तो ये जो चीज है, ये सब साधना जी के एक एक शब्द में हम लोग फील किए हैं, और उसके लिए मैडम को और एक बार मैं धन्यवाद जाहिर करती हूँ। और बहुत ही हृदय स्पर्शी आपकी एक एक शब्द थी, और बोलने के लिए तो बहुत सारे शब्द है, अभी समय भी बहुत कम है, और मैं सबको एक रिक्वेस्ट करूंगी, आरएसडी केस और आरसी केस नहीं, एक महिला के नाते हम पोस्ट एक्ट 2013 गवर्नमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए जो अभी एस्टेब्लिश हुआ है वुमेन हरासमेंट के लिए वर्क प्लेस में, उसी को एक एक शब्द, ईच वुमेन एंड मेन सब पढ़ना चाहिए। एक एक शब्द में बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, और रूल रेगुलेशन पढ़ने में जितना भी आप पढ़ेंगे उतना आप लोगों को ब्यूटीफाई लगेगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद अगेन आरसी भोपाल को देती हूँ, और इतने अच्छे वेबिनार फिर करना, और छोटे छोटे जैसे मैडम ने सजेस्ट किया ऐसे ही आगे हम आपसे होप रखेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रंजीता पांडा मैम, आपने पूरे वेबिनार के दौरान बने रहे हैं, और हमारे वेबिनार के बाद जो क्लोजिंग रिमार्क्स में एक सजेस्टिव मोड में दिया है कि हमें इस तरह के और भी सीरीज करना चाहिए, इस तरह के सभी आरसीज को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए। और अगर हमारे प्रबुद्धजनों और हमारे रीजनल डायरेक्टर मैम, अगर आप परमिट करें तो हम इसके क्लोजिंग वोट ऑफ थैंक्स की ओर बढ़ना चाहते हैं मैम। बिल्कुल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर अंशुमन उपाध्याय, डिप्टी डायरेक्टर रीजनल सेंटर भोपाल से, कि प्लीज आप वोट ऑफ थैंक्स देके कंक्लूजन की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद।
इग्नू क्षेत्रीय केंद्र भोपाल की ओर से सबसे पहले मैं अपने हृदय के अतल गहराइयों से आज के हमारे प्रो-वीसी मैम प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती मैम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने अपने आशीर्वचन दिए और आज के इस वेबिनार का उद्घाटन किया और हम आपको आश्वस्त करते हैं मैम कि आपने जिन उदाहरणों से हम सभी लोग को अवगत कराया, जिसमें घर से प्रारंभ तथा बहुत सारे ऐसे देवियों के बारे में आपने जिक्र किया, इन उदाहरणों को हम लोग अपने जीवन में और अपने विद्यार्थियों को भी बताएंगे कि किस तरह से हमें इस चीज को आगे लेके चलना है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सारस्वत वक्ता के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता मैडम साधना पाठक मैडम को भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। आपने बहुत ही सरल शब्दों में भारतीय ज्ञान परंपरा के उदाहरणों से जो हम लोगों को न्याय के बारे में अवगत कराया, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि न्याय की मूर्ति और न्याय की देवी जो अक्सर लोग न्यायालयों में देखते हैं, चित्रों में देखते हैं, उस तरह से आपने बैलेंस बना के हम लोगों को बताया, कई उदाहरण दिए और खासतौर से जो आपका पंचायती राज का उदाहरण था वो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपने स्वयं रिसर्च करके स्वयं महसूस करके प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है। आपने एक बात और कही जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ द करप्शन होता है, जो करप्शन को ग्लोरीफाई किया जाता है समाज में और उसको घर से, और वो हालांकि ये निजी बात है, निजता में किस तरह से लोग करप्शन को ग्लोरीफाई करने या करने के लिए मजबूर करते हैं, और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण निदान है वो शिक्षा और मूल्य शिक्षा के एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में हम सभी लोगों का दायित्व बनता है कि हम समाज को, खासतौर से जो आने वाली जनरेशन है, उनको ये बताएं कि किस तरह से भारत को करप्शन मुक्त रखा जा सकता है। और चाणक्य का भी आपने उदाहरण दिया। चाणक्य जो कहते थे कि ये बहुत डिफिकल्ट है कि एक मछली को जल में पानी पीते हुए देखा जा सके, या इस तरह के जो आपने उदाहरण दिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और आज भी उतने ही सारगर्भित है। मैडम आपके सारस्वत व्याख्यान के लिए आप सरल शब्दों में आपने बताया और जो हमारे लोगों की आपने शंकाओं का समाधान किया वो भी बहुत साधुवाद है। और मैं आपसे यह आग्रह करूंगा क्षेत्रीय केंद्र की तरफ से कि आपको हम पुनः आमंत्रित करेंगे और आप अपने ज्ञान से हम सभी लोग को सराबोर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर रंजीता पांडा मैम का, जो कि हमारे संगठन इग्नूटा की भी अध्यक्ष हैं और RSD कैश की भी अध्यक्ष हैं, कि मैडम आपने बहुत ही अच्छे, चूंकि आप गैर हिंदी क्षेत्र से आती हैं, लेकिन फिर भी आपने हिंदी में इतने सरल शब्दों में इतने अच्छे से बताया, और जो आपने सलाह दिया कि हम लोग को इन छोटे छोटे विषयों को एक छोटा छोटा सा वेबिनार करके समाज के अलग अलग लोगों को जोड़ के हम इसको छात्रों में और बहुत सारे दूरस्थ शिक्षा के जो स्टेक होल्डर से समाज के और भी लोगों उनको जोड़ सकते हैं, उनको सेंसिटाइज कर सकते हैं। ये और जो आपने कानून पढ़ने की बात की कि किस तरह से उस कानून के एक एक शब्द को हम अगर पढ़ेंगे तो हमें संपूर्ण उसकी जो भाव है उससे अवगत हो पाएंगे। इस सलाह के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशिका महोदय डॉक्टर बिनी टॉम्स मैडम को, जिनके तत्वाधान में, जिनके कुशल दिशा निर्देशन में हम लोग इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, और उनका मार्गदर्शन हम लोग को सदैव प्राप्त होता रहता है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज इस श्रृंखला में जुड़े बहुत सारे विद्यार्थी और मध्य प्रदेश से बहुत सारे टीचर्स और जैसे प्रोफेसर रोशन मैम, जिन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए और बड़े सार्थक प्रश्न किए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स में भी पूछा, जो हमारे टीचर्स, एकेडमिक काउंसलर्स, इवैल्यूएटर्स, जो लोग जुड़े, क्योंकि कार्यक्रम तभी सफल होता है जब एक सार्थक चर्चा होती है, और इस सार्थक चर्चा के लिए सबका धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर श्रीपी मुर्सिया जी का, हमारे साथी श्री सुभाष चंद्र नायक जी का, और RC कैश के चेयरमैन डॉक्टर कुमुद वर्मा मैडम का, जिन्होंने प्लानिंग में, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में बहुत ही महती भूमिका निभाई।
मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने साथी डॉक्टर स्मृति गारगा मैडम का, जो कि सदस्य हैं आरसी कैश की, एवं उन्होंने आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से संचालित किया। मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अन्य क्षेत्रीय केंद्रों से जुड़े हुए समस्त क्षेत्रीय निदेशकों, सहायक क्षेत्रीय निदेशकों, मुख्यालय से जुड़े हुए सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर नीलोफर, डॉक्टर श्वेता सिंह एवं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने निदेशक डॉक्टर यूसी पांडे सर का, जिनके दिशा, जिनका मार्गदर्शन हम लोग को सदैव मिलता रहता है, और आज का भी कार्यक्रम उन्हीं के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। सभी को धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू सर। तो मैम, हम आज के इस वेबिनार को यहीं पर समापन देते हुए इस उम्मीद के साथ समापन देते हैं कि आगे हम इस तरह के और आयोजित करेंगे। तो सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और इसको आज समाप्त। थैंक यू एंड नमस्कार। Thank you. बहुत अच्छा प्रोग्राम। नमस्कार।